श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पूरी हो चुकी है। इस बैठक में पार्टी ने 7 अहम प्रस्ताव पारित किए हैं, जिनमें स्टेटहुड की बहाली, आर्टिकल 370, सुरक्षा से जुड़े मुद्दे और लोगों की मुश्किलें शामिल थीं। लेकिन इस पूरे गलियारे में आगा रुहुल्ला का मुद्दा सबसे हॉट टॉपिक रहा। वो इसलिए क्योंकि इस बैठक में आगा रुहुल्ला मौजूद ही नहीं थे। उनको इस बैठक की दावत भी नहीं दी गई थी और इस पर सीएम उमर अब्दुल्ला का साफ और सख्त बयाना था। बैठक के फैसले, पार्टी की रणनीति और भीतर उठते सवाल काफी ज्यादा बने हुए हैं, जिस पर सियासत लगातार जारी है। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी का डिसिप्लिन समझते हैं। ये कमेटी उन लोगों के लिए है जो पार्टी क़यादत के साथ मीडिया के थ्रू बात करना पसंद नहीं करते। और यहाँ पे इस मीटिंग में तमाम वो लोग थे जो पार्टी के डिसिप्लिन के अंदर रह के पार्टी की क़यादत और पार्टी के ओहदेदारों के साथ बात करना जानते हैं और समझते हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि उस शख्स का ज्यादा फिक्र आपको है। वहीं इस बैठक में नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट की भी निंदा की गई और जांच की मांग भी की गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने बैठक में सभी विधायकों और सांसदों से सुझाव सुने हैं। अब डिपेंड करता है कि वो सुझाव सिर्फ सुनने तक ही थे या फिर ज़मीनी हकीकत में भी बदलेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम को उमर सरकार से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं, स्टेटहुड को लेकर के या फिर कई सारी परेशानियां, पानी बिजली को लेकर के वहां की आवाम को उमर सरकार से उम्मीदें हैं। The working committee unanimously reaffirmed its unwavering commitment to the restoration of Jammu and Kashmir's special status. The committee reiterated that this issue is central to the aspiration and dignity of the people and must be addressed without further delay. The party will continue its principled fight for its full restoration. Number 2, जो resolution 2 है, the working committee urged the government of India to immediately restore full statehood to Jammu and Kashmir, as promised on the floor of the Parliament, repeatedly affirmed in the public domain and noted by the Constitution Bench of the Supreme Court. जो resolution 3 था हमारा, the working committee expressed serious concern and unequivocally condemned the terror attack in Delhi. It extended heartfelt condolences to the families of those who lost their lives. In a civilized society, violence has no place and such heinous acts must be dealt with firmly and decisively. Resolution 4. The working committee also expressed deep concern over the Naugam blast and conveyed its condolences to the affected families. The committee stated that the incident must be investigated at the highest level and responsibility fixed for any deviation from the standard operating procedures. Resolution 5. The working committee expressed serious concern over the reports of harassment faced by the students, traders and residents of Jammu and Kashmir in different parts of the country. It strongly condemned their selective targeting in the aftermath of the recent events. The committee emphasized that the people of Jammu and Kashmir cannot be stereotyped and called upon all the state governments to ensure the safety, dignity and protection of the lives and property of Kashmiris and other residents of Jammu and Kashmir living or working across India. Not every Kashmiri is a terrorist or a supporter of terror. Resolution 6. The working committee reiterated the party's unwavering commitment to fulfilling all promises made in its manifesto. और जो आखिरी resolution है, the working committee unanimously reaffirmed its full support to the government led by Mr. Umar Abdullah and urged it to continue fulfilling the aspiration of the people and upholding their dignity. आगे बात करें, बैठक में सबसे बड़ा सवाल रहा एनसी सांसद आगा रुहुल्ला क्यों शामिल नहीं हुए थे बैठक में। जब मीडिया ने सीएम उमर अब्दुल्ला से ये सवाल पूछा तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया। सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हैं, बिना नाम लिए उन्होंने सीधा कहा कि जो लोग अनुशासन में रहते हैं वो पार्टी लाइन पर चलते हैं, वहीं इस मीटिंग में शामिल थे। जो लोग अनुशासन नहीं मानते वो इस मीटिंग से दूर रहते हैं। तो क्या इसका मतलब था कि आगा रुहुल्ला अनुशासनहीन है अकॉर्डिंग टू सीएम उमर अब्दुल्ला?
सीएम उमर के इस बयान से साफ संकेत दिया कि पार्टी नेतृत्व और आगा रोहिल्ला के बीच मतभेद अभी भी गहरे हैं। मैंने खुद और मेरे साथियों ने वर्किंग कमेटी को इस बात के बारे में बाखबर किया कि कितने सारे ऐसे इदारे हैं जिनका कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए लेकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे स्कीम्स में इतनी वैकेंसियां हैं, स्कीम्स के कामकाज को आज बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन स्कीम्स की फाइलें जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं आती। स्कीम्स की मैनेजिंग कमेटी का चेयर जो है, जो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, वो नहीं है। 2 यूनिवर्सिटीज हैं जो एज पर एक्ट चांसलर उनका चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये दोनों इदारे इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस नहीं दिए गए। कल्चरल एकेडमी, पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इस तरह की बहुत से ऐसे मिसाल हैं। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, ये पोस्ट जेकेएस अफसर का होना चाहिए। इट्स अ कार्डर पोस्ट फॉर जेकेएस अफसर्स। क्या मजबूरी है कि उस पर बार बार आईएएस अफसर लगाया जाता है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने बिजली और रोजगार से जुड़े वादों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा तभी पूरा होगा जब स्मार्ट मीटरिंग पूरी तरह से लागू हो जाएगी। डेली वेजेस के मुद्दे पर उन्होंने पीडीपी पर ही निशाना साध दिया, जिस पर उन्होंने कहा, हमने उनसे समय मांगा है, पीडीपी ने उन्हें धोखा दिया था, लेकिन हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की 2 दिन की मीटिंग आज श्रीनगर के हेडक्वार्टर्स में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 7 रेजोल्यूशंस आज लाए गए हैं। जिसमें से पहला रेजोल्यूशन है कि 370 की बहाली, साथ ही साथ में फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है। वही अगर हम तीसरे रेजोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था उसको कंडेम किया गया है। वही चौथा रेजोल्यूशन है नौगाम में जो हाल ही में पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ था, जहां पे 9 लोग शहीद हुए थे, उसको लेके कंडेम किया गया है। 5वें रेजोल्यूशन की बात करें तो जो इस वक्त स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन देश भर में इस वक्त पढ़ रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद उनको शक की नज़र से देखा जा रहा है, उस पर भी एक रेजोल्यूशन लाया गया है। वही 6ठे रेजोल्यूशन की बात की जाए तो कहा गया कि जितने भी मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए गए थे उनको खरामा फुलफिल किया जाएगा। और वही 7वां रेजोल्यूशन है, कहा गया है कि तमाम एमएलएज जो हैं, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 साल बचे हैं, जिसमें वो अपना पूरा समर्थन सीएम उमर अब्दुल्ला को देंगे। वही उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें कई सारे सवाल लिए उन्होंने। जब उनसे सईद आगा रूल्ला एमपी जो इस कमेटी के एक मेंबर भी हैं उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है ये डिसिप्लिन पार्टी है और मीडिया में जिस तरीके से सामने बयानबाजी दे रहे थे आगारुल्ला, वो कहीं ना कहीं उनको जेब नहीं देता है। और वही कई सारे और मुद्दे हैं जिन पे बात की गई। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात हुई है। उन्होंने कहा कि जेईआरसी के पास इस वक्त ये मुद्दा रखा गया है। हमारी कोशिश यही है कि जो 20% हाइक है वो ना हो, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगें ताकि तब हम डिसाइड कर पाएं कि कौन से डिजर्विंग वो रेसिडेंट्स है यहाँ के जो 200 यूनिट्स इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का, उसके बारे में। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 2 दिन के लिए मीटिंग हुई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने फैमिली और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और नीचे दिए गए कॉमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए कि किस वजह से आगा रोहिल्ला इस बैठक में शामिल नहीं हुए, उन्हें शामिल होना कितना ज़रूरी था। नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।